Hello friends, today I will discuss about that immune cells, that are various types of immune cells which are present in our body system. Okay, that are all the immune cells that are carries that different types of functions. Okay, here one is that we are talking about that immune cells. Here one is that focusing on this word, the immune cells that are protects to, and it is included to our immune system. Okay, and that creates that immune response, and then protects to our body by against the pathogens. It is a one type of the functions of that all the types of immune cells. Okay, here one is that focusing on this word, the immune cells. The immune cells, that are various types of immune cells which are present in this our body system. Okay, here one is that the immune cells, the two types of immune cells. First of all, the lymphocytes, which carries that lymphatic system, and then second one is that our red blood cells, which are already not including into the immune cells, but it is included to that our white blood cells. Here one is that white blood cells, it is included to that our immune cells. Okay, and most important thing is that macrophages, which is also is a part of that immune cells, which is attached to that white blood cells. यानी कि macrophages जो word है, जो term है, वो white blood cells से क्या है, attached है. ओके, हम lymphocyte की बात करें तो lymphocytes कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, हमें पता है कि lymphocytes lymphatic system से अटैच है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर B सेल होगी और सेकंड होगा T सेल्स, राइट. और अदर वन इज दैट, थर्ड वन इज दैट very important, but it is present in our body, which is very less. It is called the natural killer cells. Okay, then white blood cells की हम बात करें तो white blood cells कितने टाइप के होते हैं हमारे शरीर में, तो उसकी बात करते हैं. तो दो टाइप्स के white blood cells होते हैं यहाँ पर. Granulocytic and agranulocytic. Okay, the granulocytic white blood cells, that are three types, which is depend on that structure and that cytoplasmic components. It depends on that. Okay, यानी कि ग्रेनुलोसाइट का जो डिफरेंस है, उसका जो टाइप्स है, वो किस पर डिपेंड करता है, तो उसके फंक्शन पर. सेकंड वन इन दैट शेप और स्ट्रक्चर, एंड द थर्ड वन इज दैट उसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, उसके हिसाब से उसका क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है. ओके, दैट ग्रेनुलोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर दैट, फर्स्ट वन इज दैट न्यूट्रोफाइल्स, then acidophils, then basophils. Okay, this is three are that granulocytic cells. Okay, and the agranulocytic cells की हम बात करें तो उसमें दो ही आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. ओके, यानी कि हमने देख लिया कि मोनोसाइट जो है वो तो एज अ वाइट ब्लड सेल्स के रूप में ही होते हैं, और लिम्फोसाइट भी क्या होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं, लेकिन कौन से वाले, ए ग्रेनुलोसाइटिक. ओके, तो मोनोसाइट यहाँ पर आता है, द वर्ड इज दैट मोनोसाइट. ओके, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा. ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के बारे में हम देखें तो बी सेल का फंक्शन क्या होता है हमारे शरीर में. तो बी सेल का फंक्शन है कि बी सेल जब भी उस पर कोई एंटीजन का आक्रमण होगा, तब बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा. ओके, देन आफ्टर वी आर फोकसिंग ऑन दैट टी सेल्स, दैट आर फंक्शन के हिसाब से उसके तीन टाइप्स हैं. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड रेगुलेटरी टी सेल्स.
the cytotoxic T cells, the work that cytotoxicity helper T cells that help to that B cells for the production of that antibody, and the regulatory T cells that regulate the function of that helper T cells and killer T cells. ओके तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, इन दोनों के फंक्शन पर नजर रखता है. ओके देन आफ्टर दैट नेचुरल किलर सेल्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल किलर सेल्स, focus on this word of the natural killer cells. Okay, it is a very very less amount of that in our body, बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं. और वो क्या करते हैं, तो नेचुरल किलर सेल्स कहलाते हैं. उसके हिसाब से वो सेल्स की एपोप्टोसिस और साथ ही साथ साइटोलिसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. ओके यानी कि एपोप्टोसिस मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग दैट एपोप्टोसिस वर्ड. Apoptosis that indicates that self destruction, सेल की सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने में ये नेचुरल किलर सेल्स जो है वो ग्रीन एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं और उसके हिसाब से क्या होता है, तो सेल की डेथ होती है. ओके द टारगेट सेल्स को ये क्या करता है, कोई भी सेल को टारगेट बनाते हैं और उसे एपोप्टोसिस करने के लिए उसके इंक्रीज करते हैं. ओके Here on is that ये हमने कंप्लीट कर लिया कि लिम्फोसाइट कितने होते हैं और उसका फंक्शन क्या है. अब हम देखते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं. ओके फोकस ऑन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल द शेप ऑफ दैट वाइट ब्लड सेल्स. तो न्यूट्रोफाइल्स जो है वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट न्यूट्रोफाइल्स. It is called a bilobed structure. Okay, या multilobed structure यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा. So it is called that polymorphonuclear leukocytes of that neutrophils. Neutrophils इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके जो साइटोप्लाज्म में दो टाइप की ग्रेन्यूल होती है, एसिडिक और बेसिक ग्रेन्यूल. ओके इसके हिसाब से उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रोफाइल्स. यानी कि ये दोनों टाइप की डाइस से या इंग्रेडिएंट से वो क्या हो सकते हैं, स्टेन हो सकते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है न्यूट्रोफाइल्स. इट इज अ वन टाइप ऑफ दैट मैक्रोफेज. ओके देन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट eosinophils. The next one is that eosinophils is called that bilobed structure, also called as a headphone like structure. Okay, the eosinophils they contains that only for only acidic granule in the cytoplasm, so that eosinophils can be stained by that eosine dye, so that it is called that eosinophils, or also called as a acidophils. Okay, and the third one is that it is called that basophils. The basophils, it is a like the structure of the neutrophils, but the nucleus is that, और the cytoplasm की जो granules होती है वो उसके पूरे उसे क्या कर देती है, उसके न्यूक्लियस को ढक देती है. यानी कि उसके जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो हमें पूरा का पूरा दिखने को नहीं मिलता. ओके और basophils they contains that basic granules, and the basophils it is not macrophages. Okay, neutrophils and the eosinophils that are both are that macrophages, but basophils it is not a macrophages. Okay, it is a one type of that it is process into that allergic reaction. Okay, allergic reaction में क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारे शरीर में. ओके ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, ये 3 to 5% में पाए जाते हैं, और ये जो रहते हैं 60 to 70%, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में. ओके देन आफ्टर डिस्कसिंग ऑफ दैट agranulocytic white blood cells, there are two types, monocyte and lymphocytes. We are already discussing about that lymphocytes. We are talking about the monocyte only. Here one is that monocyte. The structure of that
cashew nut like structure or also called as a kidney like structure, it is called that monocyte. Okay, here one is that monocyte जो है वो भी क्या है, मैक्रोफेज है, लेकिन किस टिश्यू में आए हैं उसके हिसाब से उसमें क्या होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। यानी कि एपिथेलियल लेयर में आए हैं तो उसके हिसाब से उसका टाइप्स हो गए, लंग्स में आए हैं तो उसके हिसाब से उसका टाइप्स अलग होगा। यानी कि अल्वियोलर सेल्स कहा जाता है, अल्वियोलर मैक्रोफेजिस अगर लंग्स में आए हैं तो, और अगर ब्रेन में है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके, तो दिस इज होल अबाउट दैट इम्यून सेल्स। हमने पढ़ा कि कितने टाइप्स के इम्यून सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, उसका क्या शेप है, उसकी कोई साइज क्या है। ओके, दिस इज होल अबाउट दैट इम्यून सेल्स फंक्शन, द स्ट्रक्चर एंड देन एक्टिविटी। ओके, द मैक्रोफेजेस that involve into that phagocytosis process. Okay, phagocytic process में क्या करता है, ये हेल्प करता है, phagocytic process. ओके, मोनोसाइट जो होता है, जो दो टाइप के होते हैं, वन है होता है जो फिक्स्ड होता है और वन जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इंटेस्टिनल में आया है तो गट मैक्रोफेजिस उसे कहा जाता है। अगर अल्वियोलर यानी कि अल्वियोली में आया है तो अल्वियोलर मैक्रोफेजिस, एंड ब्रेन में आया है माइक्रोग्लियल सेल्स। ओके, अगर लीवर में आया है तो उसे हम क्या कहते हैं, कूफर सेल्स। ओके, दिस इज होल अबाउट दैट मैक्रोफेजिस टाइप्स। ओके, हमने देखा कि लिम्फोसाइट्स होते हैं इम्यून सेल्स के तौर पर और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, तो दिस इज होल अबाउट दैट इम्यून सेल्स फंक्शन। ओके, I hope like this video. Please like and subscribe my channel, and if you doubt in your mind, please give me in that notice box or also called as a comment box में आप मुझे अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।